A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics and the statistics for economics. Okay. So from the previous few classes we were continuously revise the chapter, and you know from the 1 to 4 Feb you are going through your viva, and from the 6th your upcoming annual examination are there. So you have to do more and more practice, because we are continuously revise the chapters in the online classes, offline classes, as well as in the videos also. Okay, so in the previous few classes we were continuously revise the chapters of the statistics for economics. We have done numbers of the numerical questions related to your basically the what we have said, that the numerical questions of the mean, median, mode, index number, correlation, dispersion, and simultaneously we have also discussing the some chapters in which student are the facing the basically problems. For example, the chapters like the price determination, main market forms, and the simple applications of the tools of demand and supply. We have continuously revised. I think two or five times we are continuously revising those chapters, and simultaneously I have seen that the student have facing the problems in the theory of demand also, that what will impact on the change in the effect of the change in the when the one factors affecting the demand. So effect of change in the related goods, income, and the price of the on the demand of the any commodity. So in today's class again we are going to study the topic, that is theory of demand. Okay, so let's get started. Okay, so in this chapter we are going to start with the effect of change in the price of the related goods. Effect of change in price of related goods, okay, on demand of the commodity. ओके, जब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की जब प्राइस में चेंज हो रहा है, तो उनकी जो भी रिलेटेड गुड्स की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसमें हम लोग बात किसकी करेंगे. हमें पता है रिलेटेड गुड्स कौन कौन से गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट्स एंड दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स कौन कौन से होते हैं. सब्सटीट्यूट गुड्स आर those goods which can be substitute from each other. For example, if we have the option of the tea and coffee, so we can substitute the tea in place of coffee. कि हम लोग टी को क्या कर सकते हैं, कॉफी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. अब बात आती है कि हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे क्यों. करेंगे इसलिए क्योंकि जब प्राइस एक कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी, देन वी विल शिफ्ट टू दी नेक्स्ट कमोडिटी. तो जब भी हम लोग रिलेटेड गुड्स को बात करते हैं तो उसमें दो गुड्स पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज substitute goods and complementary goods. Okay, substitute goods and the complementary goods. So substitute goods कौन कौन से गुड्स हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो इसमें हो गया टी एंड कॉफी, राइट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर, कि जिनका हम लोग यूज क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं, साथ में करते हैं. जैसे एक क्या है दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. अब हाँ, ऑप्शन हम दे सकते हैं कि हाँ कार तो अब डीजल से भी चलती है, पहले भी चलती थी, एज वेल एज हम लोग सीएनजी भी यूज़ कर रहे हैं. बट अगर हम लोग बात करते हैं कार की, तो कार के लिए पेट्रोल इज नीडेड. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया यहाँ पे, कार एंड पेट्रोल. ठीक है, अब कार की प्राइस कितनी होगी और उसका इम्पैक्ट पेट्रोल पे कितना पड़ेगा, यही सारा क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अगर कोई भी रिलेटेड गुड्स है, टी की प्राइस में चेंज हो रहा है, तो इम्पैक्ट कॉफी पे क्या पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स की इफेक्ट ऑफ चेंज. और कार की प्राइस में अगर चेंज होगा
तो पेट्रोल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इसी को बात जब हम लोग करेंगे तो हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यही बात आ जाती है कि अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस टी की, फॉर एग्जांपल टी की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, टी की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड द डिमांड ऑफ द कॉफी विल इंक्रीजेस। दैट मीन्स टी की price of tea if increases, so demand of tea will decreases and the demand for coffee is increases। जो डिमांड है कॉफी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अगर फिर कार एंड पेट्रोल के साथ कि अगर प्राइस कार की इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, जब कार की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी सो नोबडी परचेज द कार, तो जब कार कोई नहीं परचेज करेगा तो पेट्रोल की भी जो डिमांड है, डिमांड ऑफ पेट्रोल विल ऑल्सो डिक्रीज। डिमांड क्या है पेट्रोल की, कम हो जाएगी, कार की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस अगर कार की इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर पेट्रोल क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज होगी तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, substitute goods। okay, effect of change in the price on the demand of the commodity, on demand of commodity। so first one is a rise in price of the one good, कि अभी हम लोग क्या करते हैं, एक गुड की प्राइस अब इंक्रीज हो रही है। so we will discuss first rise in price of one goods or the good। okay, that is coffee। अगर क्या है कि कॉफी की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज कर रही है विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो क्या करेगी, जो डिमांड है इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का, उसके डिमांड को इंक्रीज कर देगी। जैसे हम लोग ने यहाँ पे ले लिया कि प्राइस कॉफी की अगर इंक्रीज हो रही है सो डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे है आपका टी विल इंक्रीज। ठीक है, देखिए एक की, इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कि एक की प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड अदर कॉमोडिटी की क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। सो दिस इज बिकॉज एज द प्राइस ऑफ द कॉफी राइजेस, जैसे ही कॉफी की प्राइस क्या होगी, वो राइज करेगी, इट्स डिमांड फॉलिंग, इट्स डिमांड फॉल्स, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। आपको पता ही है कि प्राइस इंक्रीज करिए तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी, कॉजिंग राइज इन द डिमांड ऑफ द टी। और क्या हो जाएगा, जो डिमांड है किसकी, टी की, वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब प्राइस एक गुड की इंक्रीज हो रही है, डिमांड अदर गुड की इंक्रीज हो जा रही है। सो द डिमांड कर्व ऑफ टी वुड शिफ्ट टू दी राइट। अब इसमें डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ टी, okay, and decrease in demand of what, कॉफी। ठीक है, समझ आया कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, सो दी
इंक्रीज इन डिमांड ऑफ टी, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, और डिमांड कॉफी की क्या हो जाएगी, वो फॉल कर जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शेड्यूल लेंगे, शेड्यूल के साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको डायग्राम के हेल्प से भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जब डिमांड इंक्रीज करी है तो कर्व विल शिफ्ट टू दी डिमांड फॉर दी सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब टी का जो कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो पहले एक टेबल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक ये अज्यूम कर लेंगे। देखिए अजम्पशन मैंने बोला है कि अजम्पशन हमें हर लेवल पे लेके चलना है, तो अजम्पशन हम ये ले लेंगे कि ये जो प्राइस है टी की जो प्राइस है यहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक स्केड्यूल लेते हैं, प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी, प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ठीक है। सो प्राइस में क्या दे रहा है, प्राइस जो है आपका वो आपको पता है रुपीज में दिया होगा, क्वांटिटी तो यूनिट में ही देता है। सो 10 हमने यहाँ पे अज्यूम क्या कर लिया था कि जो प्राइस है टी की वो क्या है, वो कांस्टेंट ही रहेगी, एंड द क्वांटिटी क्या है, वो 4 और 8। क्यों 4 और 8 क्यों हो गई, इसकी जो डिमांड है क्वांटिटी टी की इंक्रीज क्यों कर गई, बिकॉज प्राइस क्या है कॉफी का इंक्रीज कर गया, इसलिए क्वांटिटी क्या है टी की इंक्रीज कर गई। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ टी एंड हियर प्राइस ऑफ टी। ठीक है, प्राइस हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे ले लेते हैं 10, 20, 30। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी हम कितना डिमांड कर रहे थे, टी की 4। ठीक है, एंड व्हेन द प्राइस इज ऑल्सो ऑल्सो 10, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट ले लिए, तो क्वांटिटी टी की क्या हो रही है, 8 हो जा रही है, 8। सो द डिमांड कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम दिस टू दिस। Okay, so you will draw this point with the help of scale. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड शिफ्ट हो गया। अब इसको हम लोग जब भी कोई न्यू पॉइंट शो करते हैं तो हमेशा इस पॉइंट से, मेन पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंट शो करते हैं। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, जो कर्व है वो डी से क्या हो गया है, D1 शिफ्ट हो गया। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे डिमांड इंक्रीज हो गई है, डिमांड इंक्रीज होने का मतलब है कर्व विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड। जस्ट ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट हम लोग क्या करेंगे, एकदम उसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे राइज इन प्राइस ऑफ दी वन गुड, कॉफी इंक्रीज करी है, नेक्स्ट इसका हम लोग बी क्या ले लेंगे, फॉल इन द प्राइस ऑफ दी वन गुड, प्राइस क्या करेगी, इसकी फॉल करेगी, तो डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स की भी क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। जब कॉफी की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को ही ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और डिमांड इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग फिर इसका टेबल बनाएंगे। अगर ले लेते हैं 10 और 10, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, इसको डिक्रीज कर देंगे 4 से 2। ठीक है, क्योंकि डिमांड ऑफ टी की क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज प्राइस क्या है, कॉफी की भी फॉल हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉफी, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ टी एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द कॉफी, क्योंकि कॉफी की खोज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड। और जब भी हम लोग कर्व बनाते हैं तो जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसी का ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, एकदम जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा।
पहले क्या था 4 था, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड. डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो भी डिमांड है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्या हुई है, वो फॉल हुई है. तो यही इसका दोनों हो गया. नेक्स्ट आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर चेंज होता है, उसके प्राइस में चेंज होने पे जो दूसरा कमोडिटी हम लेके चल रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Okay, so effect of change in price of the complementary goods on the demand of a commodity. So first of all, we will discuss with the rise in price of complementary goods. Okay, so rise in price of the complementary goods on the demand of the commodity. On demand of commodity. Okay. So with the rise in the price of the complementary goods, that is car. अगर प्राइस क्या हो रही है, कार की इंक्रीज हो रही है. ठीक है. सो द डिमांड ऑफ द कमोडिटी दैट इज पेट्रोल, वो क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी. दिस इज बिकॉज अ फॉल इन डिमांड ऑफ द कार. कि जैसे ही प्राइस क्या होगी, कार की इंक्रीज हो गई. ठीक है. कार की प्राइस इंक्रीज होगी अगर, तो डिमांड जो है पेट्रोल की वो क्या हो जाएगी, वो फॉल कर जाएगी. क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस कार की इंक्रीज हुई है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इस केस में उसकी फॉल कर जाएगी. प्राइस इंक्रीज होने पे किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है. ठीक है. तो राइज इन प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार क्या होगा, जब प्राइस क्या होगी, कार की इंक्रीज होगी, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ petrol because there is decrease in demand of car. ठीक है. दोनों ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. जैसे ही प्राइस कार की क्या होगी, कार की प्राइस इंक्रीज होगी, सो द डिमांड ऑफ कार क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी. सो द डिमांड ऑफ पेट्रोल विल ऑल्सो भी डिक्रीज. बस यही है. फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको समझना है कि अगर एक का जैसे हम लोग अदर फैक्टर रिमेनिंग दी कांस्टेंट कर रहे थे, बट अगर ये सारे फैक्टर चेंज होंगे तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है. तो एक इसका यहाँ पे भी वही हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है किसका, पेट्रोल का, वो क्या है, कांस्टेंट है. तो एक टेबल बनाते हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल. प्राइस आपका किस में दिया होगा, रुपीज में दिया होगा, क्वांटिटी यूनिट्स में दिया होगा. सो द 10, 10, 4 एंड 2. ठीक है. बस जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. 10, 2 और 4 ले लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे पहले था डी डी, बट अब क्या हुआ, डिमांड कम हो गई है. सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड एज D1, 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 D1. बस सिंपल सा है. अब इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, व्हेन देयर इज, सेकेंड वन इज व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइसेस ऑफ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या होगी, जब प्राइस फॉल करेगी. सो देयर विल बी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कार. प्राइस कार की प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी.
जैसे ही प्राइस की कार डिक्रीज करेगी तो डिमांड ऑफ द कार क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही कम हो जाएगी प्राइस तो डिमांड ऑफ कार विल इंक्रीजेस। जैसे ही डिमांड क्या होगी, कार की इंक्रीज होगी, सो द डिमांड ऑफ पेट्रोल विल ऑल्सो इंक्रीजेस। डिमांड ऑफ पेट्रोल विल ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एकदम सिंपल सा है कि एक का प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। डिमांड कार की इंक्रीज कर जाएगी तो डिमांड पेट्रोल की भी इंक्रीज, क्योंकि जब लोग ज्यादा कार चलाएंगे तो दे नीड मोर पेट्रोल, सो दैट द डिमांड फॉर द पेट्रोल विल ऑल्सो इंक्रीज है। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज फॉल इन प्राइस, भी हम लोग ने पढ़ ही लिया। इसका भी क्या करेंगे, जैसे इंक्रीज हो रहा है डिमांड ऑफ पेट्रोल तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इंक्रीज कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा, 4 to 8 कर दीजिएगा, बढ़ गया। सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वर्ड, दैट इज एज D2 D2। एक में भी आप डायग्राम बना सकते हो, बट थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम लोग 2 में प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे वो इजिली क्या हो समझ में आ जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका, ओके, so first A, that is B. So here third one is effect of change in the income. अगर effect of change in income, कि अगर income क्या होगी, कंज्यूमर की चेंज हो रही है, ये तो और भी सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। effect of change in income on demand. Okay, so first of all we should know what is normal good and what is inferior good. ठीक है, गुड्स होते हैं कि नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर नॉर्मल गुड वो सारे गुड्स होते हैं जो हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 80,000 से क्या हो जा रही, 2 लाख हो जा रही, तो मेरा जो भी कंजप्शन है इन सारे गुड्स के लिए जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, वो सारे गुड्स जैसे हम लोग जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, आपने फूड आइटम्स ले लिया, कुछ भी डिफरेंट गुड्स के कलेक्शन ले लिए, कॉपी पेन, जो छोटे छोटे गुड्स होते हैं, फूड आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स को कंज्यूम करना, फर्नीचर, तो ये वो सारे नॉर्मल गुड्स हैं जो अगर किसी की इनकम इंक्रीज होती है सो द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड विल ऑल्सो इंक्रीजेज। एकदम एग्जैक्टली कि अगर मेरी सैलरी 80,000 है, फिर मेरी सैलरी 2 लाख हो जाएगी, तो मेरी जो भी ये सारी नीड है, ये सारी नॉर्मल गुड्स की जो नीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वही मेरी इनकम 80,000 से 10,000 हो जा रही है, अगर मेरी इनकम वही 80,000 से 10,000 हो जा रही है या 30,000 हो जा रही है, तो मेरी नॉर्मल गुड, मेरी इनकम क्या हुई, कम हुई, सो द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड विल ऑल्सो भी डिक्रीजेस। नेक्स्ट गुड होता है आपका इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन वेरी चीप क्वालिटी, बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, चीप, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोर्स ग्रेन है, जैसे एक बासमती राइस है और एक एकदम टूटा फूटा वाला कोर्स ग्रेन है, कोर्स राइस है, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, सो जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई, मेरी इनकम 80,000 से 2 लाख हुई, सो डिमांड फॉर मेरी इनकम बढ़ रही है, तो जो भी इंफीरियर गुड्स हैं, जैसे इंफीरियर गुड्स भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि चावल जो टूटा फूटा हम लोग यूज़ करते हैं, क्या उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? एकदम नहीं। जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड विल डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूँगी, जो भी नॉर्मल गुड्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, उनका कंजप्शन ज़्यादा करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इनकम इंक्रीज होने से डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स विल डिक्रीज। वहीं जब इसका ऑपोजिट देखते हैं कि जब मेरी इनकम 80,000 से 10,000 हो गई, अब क्या मैं जाऊँगी बासमती चावल खाने? एकदम नहीं, क्योंकि इतनी इनकम मेरे पास अब है नहीं। अब मैं क्या करूँगी, जो भी वैसी राइस मिल रहा है वही ले लूँगी, क्योंकि वो कंजप्शन करना है मेरे को। तो इनकम डिक्रीज होने से डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड विल इंक्रीज। यही जस्ट ऑपोजिट है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द
income of the consumer of a normal good. ठीक है, when consumer is consuming the normal goods. So effect of change in income on demand of change in income. income को पता चुका है, income is denoted as y. ठीक है, y से इसको denote करते हैं. ठीक है, on demand of a normal good. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद द राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. So if the income increases, demand for the normal good will also be increases. If the income of the consumer will increases, demand for the normal good will also be increases. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, so the curve will shift to the rightward. कर्व हमारा rightward शिफ्ट हो जाएगा. So the price and the quantity. Price will taken as constant 10, 10 and 4, 8. ठीक, जैसी rise in income of the consumer, if the income increases, demand for the any commodity will also be increases. So here we will take price, here we will take quantity. So the price is 10, 4, 8. Okay, so firstly we will add point B, that is DD, and when the income increases, demand for the commodity will also be increasing. So the curve will shift to the rightward. कर्व क्या होगा, वो rightward शिफ्ट हो जाएगा as D1, D1. ठीक है, नेक्स्ट इसका जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे. राइज फॉल इन इनकम. इनकम जब फॉल हो रही है, when the income falls, demand for the commodity will also falls. ठीक है, अब इसका एक schedule ले लेते हैं. प्राइस एंड द क्वांटिटी 10, 10 and here we will check 4 or 2. That is 10. Oh, so this one will be 4. When the income decreases, demand for the commodity will also be decreases. So the curve will shift to the leftward as this will be DD and this will be D2, D2. So this is your effect of change in the income of the consumer when the consumer is consuming the normal good. जब consumer normal goods को consume कर रहा है, in that case क्या changes आएगा. ठीक है, so next पढ़ते हैं effect of change in income on demand of the inferior goods. ठीक है, inferior goods के perspective में पढ़ते हैं. Effect of change in income on demand of what? Inferior good. Okay, so change in income on demand of the inferior goods. कि अगर income change हो रही है, same अभी मैंने बताया कि अगर first of all we will discuss with you when there is rise in income. Rise in income of the consumer. Consumer की income increase करी है, so the demand for the inferior good will fall. Demand क्या हो जाएगी उसकी? Fall कर जाएगी. So rise in income of the consumer, demand for the commodity will fall. क्यों? क्योंकि in that case कोई भी consumer बहुत cheap quality के product को consume नहीं करेगा, क्योंकि मेरी income बढ़ी तो एक मेरा standard of living भी तो बढ़ेगा ना. तो उस केस में क्या होगा, जब डिमांड डिक्रीज हो रही है, सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड. कर्व क्या होगा, वो इधर हम लोग ले लेते हैं प्राइस, इधर 10 क्वांटिटी 10, 10 and 4 and 2. So first of all we will here and when the income increases, income मेरी बढ़ गई तो डिमांड क्या है, inferior goods की डिक्रीज हो जाएगी, तो कर्व विल शिफ्ट टू दी
leftward, D, D1 and D1. Okay. Next one is when the fall in income of the consumer. जब consumer की income क्या करेगी? Fall करेगी. So when income falls, so the demand for the inferior good will increases. तो यहाँ पे price and the quantity 10, 10, 4, 8. देखिए हर बार मैंने डिक्रीज होने पे सेम लिया है 4, 2 और इंक्रीज होने पे 4, 8. इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और इजीली आपको याद भी हो सकता है कि क्या हम टेबल ले सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे थे. अब क्या हुआ है, डिमांड इनकम डिक्रीज होने पे डिमांड क्या इंफीरियर गुड्स की इंक्रीज हो गई. दैट इज D2, D2 एंड D. बस सिंपल सा था कि इनकम फॉल हुई, सो डिमांड क्या है, इंफीरियर गुड्स की इंक्रीज हो गई. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. ओके, थैंक यू.